Hello and welcome to this very special interview. We're putting the focus on infrastructure. And joining me today is Hemant Daga, someone who has more than 2 decades of experience, looks very young, but he is the CEO and co-founder at Neo Asset Management. You spent a lot of time with Edelweiss before this, and all of you got together and created this new company. Hemant, thanks very much first up to talk to me. My pleasure, Vivek, and thank you for doing this for investors and viewers. Infrastructure is something that every Indian seems to connect with, right, in some way or the other. That the minute you say taxes have been increased, they say, but what about the roads? Right. What about the bridges? It takes me 2 hours to reach from here to here. So infrastructure in many ways, we always look at it from a road point of view or a bridge point of view. But first up, you've taken a very important focus of infrastructure in whatever ways, and we'll talk about that in a bit. But how do you define infrastructure? Why did you choose to put the focus on infrastructure? So there's a very, very important question, Vivek. If you look at it, what are the asset classes that are available for individuals to invest in? There is equity. People can invest in bonds and fixed income related instruments. And people can buy hard assets, So people can buy commercial buildings. But people have never thought, investors have never thought that they can also own a piece of road. Can you own an airport, right? And what is a road? A road is like a commercial building. So let me give you the analogy of a commercial building and then I'll come to a road. So I think equity is, as an asset class, a lot of investors understand in India, right? Beginning to understand. Bonds, credit, still nascent, but beginning to understand. Infrastructure is even more nascent. Until now, people have understood infrastructure as maybe buying only equity-related stocks of infrastructure companies. So, for example, you buy a stock of a developer who's in infrastructure, say, for example, Larsen & Toubro or GR Infra or some other developer, right? But when you buy equity, it carries equity market risks, right? It can go significantly up and down with equity market variations. Plus, you are exposed to other risks because the developer might be doing something else, which is a pure equity risk that you're playing. Now, when we think of infrastructure, what does it come to our mind? Very simply, there is a road. It's a monopoly asset. You have to use that road to travel from one city to another city. That road is operated by developers or by the asset owner. And that road is generating cash flows. You and I are paying tolls, right? Okay. Every time you cross a road, you pay a toll. So it's generating cash flows. Now just imagine, Vivek, there is a road which is a beautiful piece of land. You have to use it. It is generating cash flows, right? It's very predictable. And as an investor, you and I can have an access to that slice of cash flows. So all those cash flows, the tolls that you and I pay, the tolls that millions of investors pay, are going to a bank account. It's getting collected. And from that bank account, we are earning very regular, stable incomes. So it's basically the toll that I am paying is an income to somebody else. And that for us symbolizes infrastructure. We want to showcase infrastructure ownership to clients. Clients can own this infrastructure assets. So for example, the analogy that I was giving for the commercial building, I think that's a more simpler analogy. Because investors have bought commercial buildings, right? You know people who've bought floors and buildings and rented out to companies like TCS, Infosys, ABB, Havells. You typically buy a floor plate or you buy the entire building. What do? You rent it out to a private company. What do you get in return? You get the rent, right, which is the contracted cash flow. So you know with certainty, इतना तो rent आएगा ही. Plus, मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी को दिया है तो मेरा पैसा सेफ है. And over a period, there will be price appreciation.
That's the simple logic behind investing in commercial buildings. The same logic applies to roads. In fact, it's even better in roads. In roads, so instead of a commercial building, you have an operating road asset. The important word is operating. I will park the word operating now. I will come back to that later. So instead of a commercial building, you have an operating road asset, right? अब इस रोड में भी रेंट आ रहा है. ये रेंट क्या है? जो आप और मैं टोल्स पे कर रहे हैं. तो जो कलेक्शंस हो रही है वो गवर्नमेंट के पास जा रही है और वो हमारा रेंट है, राइट? सो जैसे बिल्डिंग में रेंट आता है, यहाँ पे टोल कलेक्शंस आ रही है. अब इसमें मेरा काउंटर पार्टी कौन है? वहां पे आर काउंटर पार्टी वर दीज प्राइवेट कंपनीज. हियर माय काउंटर पार्टी इज द government entities like NHAI, right? Like MORTH. So you have even more safety. So you have predictability like rent, you have safety which is even better than a private counterpart, and you have longevity of cash flows. And that is what, in a nutshell, we want to package to our clients and provide to them as solutions in this asset class called infrastructure investing, which is investing into hard assets. Tomorrow, Vivek, the road can be replaced by a solar plant. It's generating electricity, it's making cash flows. Give those cash flows to investors. The road replaced by a solar plant. The solar plant can be replaced by a warehouse. The warehouse can be replaced by an airport. You and I are using the airport. It's not going anywhere. It's been there forever. When you enter the airport, you pay a charge, right? That charge can go to our investors. So it's a very beautiful concept of owning assets which are strategically very important and passing the cash flows of those assets to our investors. So in a nutshell, this is what infrastructure investing, a more fancy word for it, sometimes people will call it as real assets. It's not real estate, it's real assets. Basically hard asset investing, right? But operating assets, generating cash flows. And do you buy equity or do you invest in the bonds that they issue from time to time? What is the route you take? So we own the asset. Okay. So when we own the asset, we own the equity, we own the debt, right? So basically when we buy a road, we are buying the road, we're going to run the road, right? Just like, agencies manage buildings. There are agencies to manage roads. These are very simple assets to manage. It's just that people haven't experienced it. So there is sometimes, a complexity associated with it. Yeah. But managing a road as technology passes is very simple. Technically today, sitting in my office here, I can monitor a road basis technology, and you can see even a small pothole created in a road very far away, sitting in our offices here. That's the power of technology. So what we are doing, coming back to your question, is we want to focus on operating assets, nothing under construction. See, we have financial investors. So we don't want to do anything under construction. That is not, a skill that we have. We want to do fully operating assets where cash flows have started coming from the government entities, right? We own these assets completely. So the equity is ours, and the debt, we go to banks and we get debt on those from banks, because banks love to finance these assets, right? They want to own the debt of these assets. So we own the equity. The returns on the equity flow to our eventual investors. And I keep telling this, Vivek, to a lot of people. When people own equity assets, so for example, when you're buying equity in stock markets, effectively what are you doing? You are discounting a series of cash flows. All of equity is cash flows, right? Because the bottom line is cash flow. But those are volatile cash flows, right? And you are paying a certain price for that. Here in infrastructure, I'm doing the same thing. I also have a series of cash flows, just like a company, but our cash flows are more stable. Some cases, they are actually contracted with government entities. So technically, this is an even safer asset class compared to just a very simple analogy of buying a stock, because a stock is cash flows with all its risks. And volatility. And volatility of cash flows. This is more stable, more predictable, more long-term in nature, with a counterparty, which is the government entities, which you and I can,
really trust. And it's not like traffic's going to stop. It's not like People traffic's are going to stop. drive more. Absolutely. Trucks are going to move. I mean, it's not like... And so there are two types of road projects, I must also clarify, and that's the beauty. So there are some road projects which are called hybrid annuity projects. Okay. For simplicity, let's just use the word loosely, annuity, because this is just a very basic explanation. What do these projects mean? The government wants to build infrastructure, so the government wants to promote roads. So the government, in its public-private partnership with the private developers, has said that even if a single road, even if a single truck doesn't operate on that road, the government will pay a certain annuity for the next 15 years. So that's independent of traffic. So even tomorrow, say for example, the Delhi-Amritsar highway is coming, right? A single road, a single truck doesn't cross that. You will get paid. Basically, our investors will earn. And the other type of road is what you were referring to, you know, कि ट्रैफिक बंद तो नहीं हो जाएगा. Those are toll roads. तो उसमें क्या होती है, एक बेसिक प्रिडिक्टेबिलिटी होगी कि इतनी तो ट्रैफिक आएगी, और साथ में अगर ट्रैफिक बढ़ा तो आपकी थोड़ी कमाई और बढ़ जाएगी. बट ब्यूटीफुल पॉइंट क्या है ना, ऑपरेटिंग रोड्स है और कैश फ्लोज जनरेट कर रहे हैं. ये जो रोड्स पे आपका फोकस है, क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से, और आपको क्या मतलब पूरे देश को लगता है कि इस सरकार ने बहुत कुछ किया है रोड्स पे, और जो मिनिस्टर हैं गडकरी, और हमने पहले भी देखा था, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द टाइम जब मिस्टर वाजपेयी वाज इन पावर एंड द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल वाज बिल्ट. एब्सोल्युटली. They've always had an intrinsic focus on roads. True. Has that been one of the critical reasons behind your focus on roads? That at least they're being built, there is a focus on the highest authority. You talked about potholes. I mean, we keep reading stories that there are drones who are tracking, conveying back to the minister who's observing what is the progress. So let me tell you, there are a couple of reasons for us to choose this sector. Okay. Firstly and most importantly, so we've chosen two sectors, roads and solar plants. These are two of the largest infrastructure sectors. Okay. Is there a massive government push? I think the answer is a clear yes, right? I mean, there is no debate on that. Why have we chosen these sectors? So whenever we think of investing solutions for our clients, we think of sectors which are a little more matured in their journey. We don't want to offer sectors which are very nascent, where a lot of discovery is yet to happen. That means there is more risk, right? Here, discovery has happened. The public-private partnership model is well established. Government contracts are very enforceable, which is very good. Cash flows are well established. It's a sector which is very important to India. And I'll give you some numbers because that will also give the viewers a sense of the size of the opportunity, right? तो जब भी कोई सेक्टर में इन्वेस्ट करना है ना, एक सेक्टर की जर्नी को होने दो. You don't need to be the inventor. In investing, let the journey play out a little, right? At Neo, we always believe risk substantially कम लो. रिटर्न उसमें 1-2% कम हो जाएगा ना, तो बहुत चलता है. बट रिस्क को ना बहुत कर्टेल कर दो. तो ये जो सेक्टर्स है ना, रोड्स और सोलर जो हमने चूज किया है, बहुत बड़े सेक्टर्स है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, गवर्नमेंट का फोकस है, और इसमें जो बाकी फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स है ना, उन्होंने भी अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं. तो जब अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं, सेक्टर बड़ा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो हमको ये अपने कस्टमर्स को दिखाना है. दिस इज व्हाट वी वांट टू शोकेस टू आवर क्लाइंट्स, राइट? नाउ जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, लेट मी स्टार्ट विद सोलर बिकॉज आई हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट रोड्स. सोलर, व्हेन इंडिया स्टार्टेड इन 2010, हमारा सोलर मिशन क्या था? 10 गीगावाट्स बनाना, राइट? देन इंडिया मिडवे इन दिस डेकेड बिटवीन 2010 to 2020 said कि चलो 100 गीगावाट्स डेवलप करते हैं. टुडे वी आर एट 100 गीगावाट्स, राइट? एंड द गवर्नमेंट हैज एक्चुअली सेट अप अ वेरी एम्बिशियस टारगेट ऑफ 500 गीगावाट्स बाय 2030. सो यहां से भी 5 गुना, राइट? पिछले 10 साल में 30x ग्रोथ हुआ है. अब यहां से 5 गुना ग्रोथ होगा. उसके लिए पैसे चाहिए. ये पैसा कहां से आएगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से.
सारा पैसा तो गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो डजंट हैव ऑल द मनी। पैसा कहां से आएगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट पब्लिक के पैसे लगाएगी, right, in building this infrastructure, and the private investors will also participate. So once the asset is built, the private investors, which is people like us, asset managers, on behalf of our clients, will buy these assets. मेरे इन्वेस्टर को तो ये कैश फ्लो चाहिए, तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, उसने बेसिक पैसे लगा दिए डेवलपर के साथ मिलके। अब मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं अच्छा ये एसेट बहुत अच्छा है, ऑपरेट कर रहा है, इसमें कैश फ्लोज आ रही है, खरीद लेते हैं। मेरे इन्वेस्टर को चाहिए ना, राइट? मेरे इन्वेस्टर को तो ये बहुत ब्यूटीफुल कैश फ्लो है। तो सोलर इज अ बिग थ्रस्ट एरिया। एंड सी व्हाट हैज हैपेंड इज इन And where have we reached on this target now that we've in the fourth year of from 2020 to 2030 making progress? making very good progress. I think our implementation is very, very good. So as I was saying, from 2010 to 2023-24, there has been a more than 10x growth. 10 गीगावाट से लेके 100 गीगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। यहां से हमको जाना है 100 गीगावाट से 500 गीगावाट इन द नेक्स्ट 7 इयर्स। हर साल 50 गीगावाट बनता है, राइट? और हर साल ये 50 गीगावाट बनाने के लिए आपको पैसे चाहिए, राइट? जैसे कंपनीज नहीं होती है, कंपनी क्या करती है जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है तो कंपनी को भी इक्विटी चाहिए, कंपनी को भी डेट चाहिए। वो इक्विटी कहां से लेता है? आइदर प्रमोटर अपने पैसे खुद लगाता है, या कंपनी अपने रिटेन्ड अर्निंग से लगाती है, या कंपनी स्टॉक मार्केट में जाती है और इक्विटी रेज करती है। तो ये जो 16 प्रोजेक्ट्स है, इनको भी तो इक्विटी चाहिए ना विवेक। तो वो इक्विटी कहां से आएगा? वो हमारे इन्वेस्टर्स से आएगा, राइट? जो हमको पैसे देंगे और बोलेंगे अच्छा ये प्रोजेक्ट खरीद लो और इससे जो कैश फ्लोज आएंगे वो हमको रिटर्न बना के दे देना, राइट? तो सोलर में इंडिया में बहुत प्रोग्रेस है। इनफैक्ट सोलर इज वन सेक्टर जहां पे आज तक जितना भी प्रोग्रेस हुआ है ना, वेरी फ्यू पीपल नो दिस विवेक, सब कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हुआ है। इट्स ब्यूटिफुल हाउ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैज वर्कड। क्लैरिटी ऑफ लॉ, गुड एनफोर्समेंट, स्टेबिलिटी, यही चाहिए ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। तो ये है इंडिया में। सारे इन्वेस्टर्स आते हैं इंडिया में पैसे लगाने के लिए, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, पेंशन फंड्स आते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं नियो में, वी वांट अ डोमेस्टिक कैपिटल टू गो इनटू दिस। हम जैसे लोगों को बोलते हैं ना एसआईपी था, 20 साल पहले एसआईपी वाज लाइक अ फ्रेंच वर्ड, बहुत कम लोगों को समझ में आता था। अब क्या हाउस होल्ड वर्ड बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर इज एट दैट कस्प। अगले 20 साल वी एज नियो वांट टू चैनलाइज आवर डोमेस्टिक सेविंग्स इनटू आवर डोमेस्टिक एसेट्स, बिकॉज ये जो एसेट है ना, इसकी इतनी अच्छी अर्निंग पावर है कि वो तो मेरे इन्वेस्टर के पास रहना चाहिए, राइट? नाउ कमिंग टू रोड्स। रोड्स में इंडिया इज नाउ बिल्डिंग 34 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स एवरी डे, राइट? अभी तक हमने पूरी हिस्ट्री में नेशनल हाईवेज 1,50,000 किलोमीटर्स बनाया है। अगले 5 साल में 66,000 किलोमीटर्स बनाना है। इसमें पैसे कितने लगते हैं हर साल? 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी, राइट? अब इसकी पूरी फंडिंग तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू चैनलाइज मनी फॉर सोशल ग्रोथ, अदर एरियाज, राइट? तो अब ये जो 2,50,000 करोड़ है, हाउ हैज द गवर्नमेंट बीन फंडिंग इट? वेरी ब्यूटिफुली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट क्या बोलती है? अच्छा चलो डेवलपर के साथ मिलकर ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं, हम 40 लगाते हैं, डेवलपर 60 लगाएगा और रोड बनाते हैं। दूसरा तरीका क्या है? गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, तो जिस तरीके से डाइवेस्टमेंट्स होते हैं कंपनीज के, बिकॉज वो तो अब सब लोग समझते हैं, गवर्नमेंट बोलता है अच्छा मेरे पास ये एक्सप्रेसवे तो पड़ी हुई है, इसको बेचते हैं और जो पैसे आएंगे उससे नया रोड बनाएंगे। तो इसकी फंडिंग किस तरीके से हो रही है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हो रही है, एसेट मोनेटाइजेशन से हो रही है। और जब वो एसेट मोनेटाइजेशन होता है, जब सरकार अपनी सड़क बेचती है, खरीदता कौन है? हमारे कस्टमर्स खरीदेंगे, हमारे थ्रू खरीदेंगे, एसेट मैनेजर्स के थ्रू खरीदेंगे। सो दोज आर द अपॉर्चुनिटीज दैट वी वांट टू शोकेस टू आवर क्लाइंट्स, बट एट द हार्ट ऑफ इट वेरी सिंपल, ऑपरेटिंग एसेट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, कैश फ्लोज आएंगे, वो कैश फ्लोज को पैकेज करो और कस्टमर को दे दो। तो किस तरह के निवेशक आपके मुताबिक इस तरह के प्रोजेक्ट में निवेश करने चाहिए? क्योंकि जैसे आपने कहा ये एक
कैश फ्लो ड्रिवन है बिजनेस, आपको एक रिकरिंग अमाउंट मिल रहा है, लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स हैं ये, शॉर्ट टर्म नहीं हैं, तो किस तरह के निवेशक आपके मुताबिक इस तरह के एसेट्स को लेना चाहेंगे या चाहिए? एक बहुत सिंपल वर्ल्ड एनविजन करिए। आपको आपके रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए। आप क्या चाहते हैं? लंबी टाइम के लिए आए पैसे, लंबी अवधि आपने बोला, लंबा टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा क्या है? अच्छे पैसे आने चाहिए, कैश फ्लोस बहुत स्टेबल होने चाहिए क्योंकि टेंशन कम होना चाहिए। और कहाँ से आने चाहिए? गवर्नमेंट से आए तो सोने पे सुहागा, तो आप निश्चिंत भी रह सकते हो, लंबा टाइम भी है और कैश फ्लोज आ रहे हैं, राइट। सो टेक्निकली हमारे इन्वेस्टर्स कौन है? जिनको लॉन्ग टर्म कैपिटल लगाना है, राइट। जितना लॉन्ग टर्म पेशेंट, एंड द ब्यूटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन एसेट क्लासेस कि ये लंबा चलता है। एक्सप्रेस वे तो 50-50 साल चलते हैं, राइट। 16 प्रोजेक्ट्स 30-30 साल चलते हैं, तो एक्चुअली एसेट क्लास भी लंबा है, इन्वेस्टर्स के नीड भी लंबे हैं। ये तो ब्यूटीफुल मैरिज हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी आर शोकेसिंग, राइट। ग्लोबली, एंड आई विल गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक हियर विवेक, जैसे जो पेंशन फंड्स नहीं होते ग्लोबल, उनके रेगुलेशंस शायद थोड़े और ओपन होते, रिलैक्स्ड होते। ग्लोबली 40% दुनिया में जितने ऑपरेटिंग एसेट्स है ना, चाहे एयरपोर्ट्स हो, रोड्स हो, ब्रिजेस हो, गैस पाइपलाइंस हो, 40% ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स आर हेल्ड बाय ग्लोबल पेंशन फंड्स, ग्लोबल एसेट मैनेजर्स। वो क्यों होल्ड कर रहे हैं? बिकॉज उनके कस्टमर्स को उनको लंबे रिटर्न्स देने हैं, राइट। तो इसकी ओनरशिप कहां पे है? ऑलरेडी पेंशन फंड्स के साथ पड़ी है। इंडिया में भी किस तरीके के निवेशक चाहिए? हमारे पेंशन फंड्स आए, इंश्योरेंस कंपनीज आए तो बहुत अच्छा। बाहर के लोग तो ऑलरेडी पैसे लगा रहे हैं इसमें, बिकॉज उनको तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, राइट। वी वांट आवर कस्टमर्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस लॉन्ग टर्म एसेट क्लास, एंड इन्वेस्टर्स शुड बी इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स कैन बी फैमिली ऑफिसेस हु वांट लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न्स। किस कैटेगरी तक आपका वो है? जैसे नॉर्मल जो रिटेल म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ तो 500 रुपये की भी SIP हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली आप इसमें थोड़ी जो लिमिट है ज़्यादा है, तो क्या क्या अमाउंट है, जिस मिनिमम अमाउंट जिस पे कोई निवेश कर सकता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे भी मैं एक मिथ क्लियर करना चाहता हूँ। सो देखिए, अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, AIF। पहले क्या था? म्यूचुअल फंड्स थे, PMS थी, अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। तो सेबी हमारे रेगुलेशन में क्या बोलता है कि 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो हेमंत तुमको लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज स्लाइटली सेवियर इन्वेस्टर्स। तो आज के दिन में हमारा 1 करोड़ का कट ऑफ है। बट एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं ना, इंडिया में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज InvIT, which is a infrastructure vehicle which is listed on stock exchange. So for example, Power Grid InvIT है, IndiGrid InvIT है। ये भी क्या है? जो हम जिस तरीके का काम करते हैं ना, वो उसी तरीके का काम है, वो एक्सचेंज पे ऑलरेडी लिस्टेड है। सो फॉर एग्जाम्पल, सरकार की जो पावर ग्रिड इन्विट है वो सारे ट्रांसमिशन लाइन ओन करती है। ट्रांसमिशन लाइन से जो पैसे आते हैं वो कस्टमर्स को पहुंचाती है। अब ये तो लिस्टेड है, इसमें आप और मैं 100 रुपए, 1000 रुपए, जो भी मिनिमम है, अभी मेरे दिमाग में वो मिनिमम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट वो ऑलरेडी 1000 या 10,000 रुपए तक पहुंच चुका है, जो आप एक्सचेंज पे जाके खरीद सकते हो एंड ओन इट। नाउ जस्ट थिंक, आपने बैंक में FD रखी, आपको सारे पैसे तो हमेशा लिक्विडिटी नहीं चाहिए होती है, राइट। नाउ दिस इज एन एसेट, इफ यू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग, ये जो इन्विट लिस्टेड है मार्केट में, एंड ब्यूटीफुल पार्ट क्या है ना, जो हमारा रेगुलेटर है ना सेबी, उसने रेगुलेशंस बहुत सुपर बनाए हैं और रेगुलेशंस आर एक्चुअली वर्ल्ड क्लास। हमारी इन्विट्स इज अ 1 लाख करोड़ मार्केट ऑलरेडी, इन्वेस्टर्स डोंट नो अबाउट इट। टेक्निकली आप जाके इंडिग्रिड इन्विट, पावर ग्रिड इन्विट, ये सारे इन्विट्स खरीद सकते हो। इसमें आपके रिटर्न्स कितने बनेंगे? 11%, 10 से 11% बनेंगे विथ रेगुलर कैश फ्लोज। आप चाहते क्या हो? लॉन्ग टर्म एसेट, स्टेबल एसेट, लिस्टेड, और इसमें तो लिक्विडिटी भी है विवेक। कल आपको एक्सट्रीम सिचुएशन में लिक्विडिटी चाहिए, आप एक्सचेंज पे भेज दीजिए, राइट। मगर आपका अगर निवेश का समय बहुत लंबा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है।
10 से 11% एस्टिमेटेड रिटर्न्स in a well-established regulated market owning good assets with government as your counterparty. So ये market तो already इंडिया में चल रही है and a lot of smaller investors who want to put even smaller amounts of money should participate in this. तो आप कह रहे हैं कि एज एन AIF आप 1 करोड़ तक लोग आपके फंड में निवेश करेंगे, लेकिन जो आप एसेट ओन करेंगे वो कल इन्विट भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं भी इन्विट बना सकता हूँ, राइट? तो तब जो है छोटे निवेशक भी उसको आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कुछ इन्विट्स ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, तो उनको ये जरूरी नहीं है कि वो नियो के इन्विट का वेट करें, आज के दिन भी लिस्टेड है। मैं तो चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स, अगर आप और इस तरीके से अगर हम इन्वेस्टर्स को एडुकेट करें कि ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल एसेट क्लास है, इंडिया में तो ऑलरेडी लिस्टेड है, अपना पैसा डालो इसमें। तो आप मानते हैं कि उतना आपने स्पेसिफिकली नहीं कहा, लेकिन आप मानते हैं कि बैंक्स में अगर आज देखें तो मेरे ख्याल से 225 लाख करोड़ डिपॉजिट्स, 100%। और बैंक्स में लोग ज़्यादातर जाते हैं क्योंकि ये सोचते हैं, सही भी कभी, कि इसमें रिस्क कम है, खासकर अगर आप किसी PSU बैंक में डाल रहे हैं। करेक्ट। और मैं जिस तरह से आपकी बात समझ रहा हूँ कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है हिस्सेदार है। बिल्कुल। और ये सारे जो एसेट्स हैं 15-20 साल के हैं, उनमें काफ़ी हद तक रेगुलेशन इतनी बना रखी है कि जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं वो नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो एक जो बैंक डिपॉजिट का जो निवेशक है, करेक्ट, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए कैश फ्लोज, तो जब आपने कैश फ्लोज की बात की तो ये आप डिविडेंड मतलब लोगों को समझाने इंटरेस्ट के की लिए तरह आएगा, इंटरेस्ट की तरह आएगा लार्जली, और कैपिटल अप्रिसिएशन, और कैपिटल अप्रिसिएशन भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो जैसे मैं आपको समझाऊं, बैंक में आप पैसे रखते हैं, इनहेरेंट आपकी बिलीफ क्या है कि गवर्नमेंट है, इनहेरेंट बिलीफ। हाँ, उसके लिए कोई बैंक आपको 4% देता है, कोई बैंक आपको 6 देता है, कोई आपको 7 दे देगा। अब ये क्या है, और मैं जब सब नए इन्वेस्टर्स आते हैं ना, जो जिस तरीके से हम लोग नियो में सोचते हैं, वही चीज़ करो जो एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है। तो हाँ, बाकी सेक्टर्स भी अच्छे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बट उनको एस्टेब्लिश होने देते हैं, हमको कोई रश नहीं है। रोड्स और सोलर वेल एस्टेब्लिश्ड है, राइट। बाकियों में थोड़ा प्राइवेट सेक्टर भी अब काफ़ी हो गया, जैसे 20-25 साल पहले टेलीकॉम एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, टेलीकॉम टावर, लेकिन अब तो सारे वो, बट अगर टेलीकॉम टावर है वो तो हमेशा रहने वाला है। मैं टेलीकॉम आरपू रिलेटेड स्टफ नहीं बोल रहा हूँ, टावर तो रहने वाला है ना, तो रहने वाला, गैस पाइपलाइन तो रहने वाली है ना, एयरपोर्ट तो रहने वाला है, मेन चीज वेयर हाउस तो तो वही रहने वाला है, आपके इंजन तो वही है, इंजन तो वही है जिस पे चलेगी, राइट। तो अब इसमें इन्वेस्टर्स को किस तरीके के रिटर्न्स आ सकते हैं? देखिए, हम जिस तरीके का काम कर रहे हैं, AIF स्लाइटली सेवियर इन्वेस्टर है, वो एक फंड है, इट्स नॉट अ लिस्टेड, तो उसमें लिक्विडिटी नहीं होता है। आप लंबे समय 6-7 साल के लिए लॉक्ड इन पैसे लगाते हो, तो आप कोई भी लॉक्ड इन पैसे लगाओगे तो आपके तो थोड़े रिटर्न्स ज़्यादा बनने चाहिए। तो हम लोग क्या देते हैं अपने कस्टमर्स को? एस्टिमेटेड रिटर्न्स, हम लोग बोलते हैं 16 से 18% तक एस्टिमेटेड रिटर्न्स रहते हैं। 16 से 18%, क्योंकि आप लॉक्ड इन पैसे लगा रहे हो, आप मेरे को 7 साल का पैसा दे रहे हो, मैं एसेट्स खरीद कर रहा हूँ, उसमें से आपके 16 से 18% रिटर्न्स बन सकते हैं। ब्यूटी इज विवेक, हर साल उसमें 8 से 9% ब्याज आएगा और बैलेंस विल बी कैपिटल गेन्स। सो आप ऐसे सोचिए, 16 से 18, 8 से 9% ब्याज आता रहेगा, और जो बैलेंस है जब हम लोग फंड एग्जिट करेंगे, बिकॉज ये तो एक नियमित पीरियड का फंड है ना, तो जब वो फंड एग्जिट होगा, वो एसेट्स हम बेचेंगे, तो बैलेंस पैसे 7%, 8% आपको सालाना के एक साथ एग्रीगेट होके 5-6 साल के मिल जाएंगे। अब इसी के कंपैरिजन में जो ये लिस्टेड इन्विट्स है, मेरी फंड कहां खत्म करती है? मेरा फंड बन सकता है लिस्टेड इन्विट। जब वो लिस्टेड इन्विट बन गया तो वो आज एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है, उसमें आपको लिक्विडिटी है, तो जब लिक्विडिटी है उसमें आपको, तो आपके रिटर्न्स थोड़े कम होने चाहिए, राइट। तो उसमें आपके रिटर्न्स कितने बनते हैं? जैसे मैंने आपको बोला 10 से 12% बनते हैं, हमारे फंड्स में 16 से 18 बनते हैं, लिस्टेड इन्विट्स में 10 से 12 बनते हैं। और जो लिस्टेड इन्विट्स में 10 से 12 बनते हैं ना, उसमें आपका 8 से 10% ब्याज बनेगा और बैलेंस 1 to 2% आपकी कैपिटल गेन्स टाइप्स रिटर्न्स बन सकते हैं। वॉलेटिलिटी बहुत कम,
काफी कम सबसे होगी, बड़ी risk काफी लोग- कम होगी। डर तो लोग वॉलेटिलिटी से जाते हैं। हाँ, वॉलेटिलिटी कम होगी, बट कम देखिए होगी कम होगी, बट Listed होगी, entity है, लेकिन बाकी जो स्टॉक्स हैं बहुत उससे कम तो होगी, उससे बहुत कम होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस दाम पे उसको खरीदें। सी, हर चीज में ना वॉलेटिलिटी तब आती है बिकॉज एट अ प्राइस इट बिकम्स सुपर एक्सपेंसिव। अगर उसी चीज को आपने जाके एंट्री प्राइस पे आपका से साल का 7% बन रहा है, अगर मैं 7% की यील्ड पे उसको खरीद रहा हूं तो मेरी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने जब खरीदा उसमें मेरा 7% ही बनने वाला था। बट अगर मैं उस चीज को 10-11 पे खरीदूंगा तो मेरी वॉलेटिलिटी और भी कम होगी, राइट? तो when an investor buys a listed InvIT, he should be very conscious the price at which he buys it. Is the IRR showing that? And that is the education that slowly investors need to have. See, जिस तरीके से हमारे देश में इक्विटी मार्केट बहुत लोगों को समझ में आने लगा, राइट? काफी लोग इक्विटी साल लगे उसमें, साल आप भी लगे। रहे हैं 20 साल से साल उस लगे। लोग space में अब बताते पब्लिक, अब लोग आप बात करोगे ना तो लोग बोलते हैं पी रेशियो ऐसा है, प्राइस टू बुक रेशियो ऐसा है, and that's actually very Valuation good. ऐसी That's हो very गई है। good. Because that पर is समय how- लगता है। समय लगता है, इसमें भी समय लगेगा और कोई रश नहीं है। दिस इज लाइक अ SIP मूवमेंट दैट वी वांट टू गैल्वनाइज एट नियो। इट्स लाइक एन SIP मूवमेंट, राइट? अगले 20 साल के लिए अपने देश का पैसा अपने एसेट्स में डालो, अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। और ये जब आपने खड़ी की न्यू एसेट मैनेजमेंट, तब से ये आप क्लैरिटी लेके आए। हमको ये एसेट क्लास बहुत अच्छा लगता है। सी, एट न्यू एसेट मैनेजमेंट ना हमको सारे एसेट क्लासेस जिसमें कैश फ्लो है बहुत अच्छे लगते हैं। एक बहुत बेसिक चीज बोलूंगा, इक्विटी मार्केट क्या है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी है। डेट को पे करने के बाद जो बच गया वो इक्विटी के रिटर्न्स होते हैं। हम उसके एक लेवल ऊपर काम करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल करके भी एक चीज होती है कि हर बिजनेस में से आप एक प्रमोटर है, आपने 150 रुपए लगाए, अब उसमें 15 रुपए बन रहे हैं। 10% रिटर्न ऑन कैपिटल वाले इंडिया में तो बहुत बिजनेसेस हो गए, बहुत बिजनेसेस हो गए, राइट? इंडिया में 10 से 20 वाले रिटर्न्स वाले बिजनेसेस तो भर के है, राइट? अब उसमें इक्विटी रिटर्न क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज वो थोड़ा डेट लेता है तो वो अपनी इक्विटी की रिटर्न बढ़ा लेता है। बट कैश फ्लो जनरेट करने वाले बहुत बिजनेसेस होते हैं। अगर आप होटल्स को देखिए, कोई अगर आप होटल खरीदिएगा 150 करोड़ में, उसमें 15 करोड़ ना आपका EBITDA तो बनेगा 10% रिटर्न ऑन कैपिटल। आप ये जैसे रोड देखिए, उसमें 10-11% तो सरकार देती है। सरकार का रेट है बेस रेट प्लस 300 बेसिस पॉइंट्स 9.75, राइट? तो बेसिकली हमारा क्या मानना है, होम लोन आप लेते हैं, क्या रेट पे लेते हैं? कोई 10 पे लेता है, कोई 11 पे लेता है, तो आप दे रहे हैं ना एज एन इन्वेस्टर 11% बैंक को। नियो में हम लोग क्या बोल रहे हैं विवेक, ये सारे एसेट्स है ना, ये 10%, 12%, 14% तो कैपिटल पे कमा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा इन्वेस्टर ना इसमें पार्टिसिपेट करे। बहुत सिंपल सोच है, मैं रिटर्न ऑन कैपिटल को प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं। बेसिकली जो कैश फ्लो आ रही है ना, वो आपका प्रोडक्ट है, बिकॉज आपको उससे ब्याज मिलेगा। बहुत अहम बात कही आपने हेमंत, क्योंकि जितने भी बड़े फाइनेंशियल प्लानर्स, आप तो खुद ही महारथी हैं फाइनेंस की दुनिया के 2 दशक से, लेकिन जितने भी फाइनेंशियल प्लानर्स से मैंने बात की है, सब जो एक बेस नंबर लेके चलते हैं, इवन इक्विटी जो हायर रिस्क है, हाई वॉलेटिलिटी है, पे 12% मान के चलते हैं। और यहाँ पर आपने रिस्क भी कम कर दी, सरकार के साथ एक कम से कम कंफर्ट है कि भाई गवर्नमेंट है, तो वो कंफर्ट है, कोई गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी। और एसेट्स अच्छे हैं, और आप हाईवेज पे जाते हैं 10-11-12% की बात कर रहे हैं, जहाँ पर FDs 6.5-7% बिल्कुल, तो बहुत बड़ी और अपॉर्चुनिटी। इसमें लिक्विडिटी है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एसेट क्लास विवेक। एट नियो वी हैव ऑलवेज फंडामेंटली बिलीव्ड इन दिस, और हमारे पास स्किल सेट है। हमको लगता है ये एसेट क्लास बहुत बड़ा है, ये अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना है, विच इज व्हाट कीप्स अस मोटिवेटेड। I wish you all the very best, Hemant. It's Thank been you, wonderful Vivek. talking to you. Thank you. Thank you. Pleasure speaking to you. Thank you.